Right. 10th class, you people please virtually raise your hand for the class so that I can see you on the top. और ninth class जो है वो मुझे नहीं visible हो अभी के लिए. Virtually raise your hand, everyone. Right. Okay. Good. Now I'm starting up with the topic reaction of metals with salt solutions. हमने last acids के साथ उनका reaction पढ़ लिया था और हमने metals का reaction वो भी पढ़ लिया था कि why is nitric acid behaving differently. वो भी बहुत डेप्थ में हमने कवर कर लिया था. तो नाउ वील बी डिस्कसिंग रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन. इनफैक्ट ये भी आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कर चुके हो. इस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आप इसे समझ चुके हो कि अगर मेटल यू आर रिएक्टिंग विद अ सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट ऑफ अ मेटल विच इज लेसर रिएक्टिव देन दिस मेटल दैट यू आर टेकिंग, देन इट विल डिस्प्लेस्ड, it will get displaced, right or not? If it is lesser reactive than the compound, than the metal that is there in the compound, then it won't displace. Simple, no? What simple सा चीज है. Nod your heads and keep yourself engaged, everyone. Don't just watch this class as a movie. So keep yourself engaged and keep answering. So यहाँ पर हमें वही बात पढ़नी है कि मेटल्स को अगर हम ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं जो कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड है तो वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा. और अगर कम रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. So let us read this. A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. है ना, सिंपल है ना. तो salt solution of metal B if you are taking and reacting it with metal A, then salt solution of metal A is formed and metal B is displaced out. This will only happen if, tell me, what is more in the reactivity? Who will answer me here? I want to have this answer from Prisha. Yes, Prisha, tell me, beta. So this reaction, I the haven't done the previous recording. but this is very simple. No, we have done this in the chapter one also. No, Prisha. If Yes. metal A is displacing metal B from its salt solution, then should it be more reactive than B or not? Yes, a metal A will be more reactive than B. Yes. So reactivity में they'll ask you such kind of a questions, no? That this is a kind of a reaction given to you. What do you understand about the reactivities of both? So metal A is more reactive than metal B. If the reaction has taken place in the forward direction, that means metal A is more reactive. अगर reaction नहीं हो रहा है, there's no reaction happening, that means metal B is more reactive than metal A. Got it, everyone, or not? Simple, no? So now they have given us an example of copper sulfate solution, blue vitriol you have taken. With that, you have put in zinc granules, silvery white in color. Then what will happen? The zinc will displace copper. Why? Because zinc is more reactive. है ना? Please stop calling me a careless zebra. Zebra came first. Instead, try learning how copper saves gold. So copper saves gold में copper is coming down, no, and zinc came quite early. तो इसका मतलब zinc is more reactive than copper. तो इसका मतलब zinc would displace it. तो zinc का सल्फेट बन जाएगा and copper will be displaced out. और ये रिएक्शन कैसे होगा? अब कैसा दिखेगा ये रिएक्शन आपको? आपने ये ब्लू कलर का विट्रॉल लिया है यहाँ पर और आपने इसके अंदर सिल्वरी व्हाइट जिंक पुट किया. स्लोली आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या हो जाएगा? दिस विल टर्न इनटू अ क्लियर लिक्विड. तो वो एक क्लियर लिक्विड में टर्न हो जाएगा और रेडिश कलर का कॉपर जो है वो आपको वहां पर मिल जाएगा. गॉट इट एवरीवन और नॉट? समझ में आया सबको? तो इजंट दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली? वी हैव डन दिस ऑलरेडी, राइट? तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में उसका रिवीजन हो गया है. देखिए यहाँ पर, इन दिस रिएक्शन जिंक मेटल इज डिस्प्लेसिंग कॉपर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. This displacement reaction occurs because zinc is more reactive. If, however, a strip of copper metal is displaced in zinc sulfate solution, there will be no reaction happening. तो अगर अब आप जिंक सल्फेट के अंदर कॉपर पुट कर दें तो क्या वो रिएक्शन होगा? नॉड योर हेड्स एंड टेल मी, होगा या नहीं होगा? अभिनव, हाँ, दूसरों के रिएक्शन देख लो मैं पहले, कौन हाँ कह रहा है कौन ना कह रहा है ना अभिनव? यू नो द आंसर, टेल मी. अगर जिंक सल्फेट में कॉपर पुट कर दे तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा? हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज देख ले अब तो. मैम कहाँ से देखूंगा मैम? ऊपर कहीं चार्ट मैम लगा है जहां तू पढ़ रहा है? अ, हाँ वो मैम देखो, को रजत नॉडिंग हेड ही सेइंग यस, लगा है ऊपर चार्ट.
मैम ये क्या? हाँ बताओ, जल्दी से बताओ। नो मैम। वाई नॉट? मैम बिकॉज मैम जिंक ऊपर आता है मैम, कॉपर के ऊपर आती है रिएक्टिविटी सीरीज में। इट इज मोर रिएक्टेबल। अच्छा, तो अभिनव कह रहा है कॉपर ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। जिंक से। अच्छा। सॉरी। अच्छा, तो इसका मतलब जिंक कॉपर। मैम, जिंक ऊपर आता है मैम कॉपर के। श्योर? डिसाइड कर हाँ ले, क्योंकि जो तू कह रहा है वो मैम। तो बिल्कुल ही गलत है। मैम वही बोला था मैम, जिंक ऊपर आता है कॉपर के। अच्छा, तुम लोग बता दो बेटा प्लीज इसको। वही बोला था इसने इसने ये बोला था जिंक मैम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। यस मैम, वही बोला था। नॉड योर हेड्स एवरीवन एंड टेल मी प्लीज। मैम देखा मैम। यही बोला था उसने कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। यू चीटर्स। रिकॉर्डिंग में प्लीज, कोई तो रिकॉर्डिंग देखकर मुझे प्लीज बात बताएगा वहां कमेंट्स में कि अभिनव ने क्या बोला था। आई एम वेरी श्योर अभिनव ने बोला था कॉपर ऊपर आता है। मैंने इसीलिए वो लिखना शुरू किया कि पहले मैं इसको लिख लूं जो वो गलत बात कह रहा है ना। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। बेटा जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, मैंने अभी समझाया, जीब्रा पहले आएगा। इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड में कॉपर नीचे आ रहा है। तो अगर आप जिंक सल्फेट में कॉपर डाल देंगे, इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली इफ यू पुट सिल्वर मेटल इन कॉपर सल्फेट, सिल्वर क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इनर्ट मेटल्स, नो? कॉपर सेव्स गोल्ड, तो सेव्स इज सिल्वर, इट इज इवन लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो सिल्वर इनर्ट मेटल है। तो अगर आपने सिल्वर डाल दिया विच इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या होगा? तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपने गोल्ड डाल दिया तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना? सिंपल है ना चीज। रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन पुट करेंगे तो क्या होगा? आयरन ज्यादा है रिएक्टिव। इंस्टेड में आयरन पढ़ा था हमने, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो इंस्टेड में जो आई है दैट इज फॉर आयरन। तो इसीलिए आयरन ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। तो अब ये रिएक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ पर, और आयरन का आयरन सल्फेट बन जाएगा, आयरन टू सल्फेट। ये याद करना पड़ेगा। वैसे आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि इस रिएक्शन में सल्फेट की नेगेटिव टू वैलेंसी होती है, तो आयरन भी अपनी वही वैलेंसी शो कर रहा है, आयरन भी अपनी टू वैलेंसी शो करेगा, और आयरन सल्फेट FeSO4 बन जाएगा, आयरन टू सल्फेट। ठीक है बच्चे? और आयरन, जितने भी आप आयरन के कंपाउंड्स पढ़ोगे सारे ग्रीन कलर के होते हैं। आयरन के कंपाउंड्स जो पढ़ने हैं आपको उनके लिए ग्रीन कलर लिखना है। तो दिस इज ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन फॉर्म देयर। ठीक है? आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? आगे चले। The copper metal produced in this reaction forms a reddish brown layer on the iron strip. जो भी आपने आयरन को स्ट्रिप या आयरन नेल की फॉर्म में लिया है, आपको उसके ऊपर ये रेडिश ब्राउन डिपॉजिट दिखेगा। दिस इज कॉपर विच इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स कंपाउंड। गॉट इट एवरीवन और नॉट? हुआ क्या है? कॉपर सल्फेट का ब्लू विट्रॉल will change into the green one. तो ब्लू विट्रॉल विल लुक लाइक, स्लोली टर्न इनटू ग्रीन, ग्रीन विट्रॉल बन जाएगा वो, आयरन सल्फेट बन जाएगा। और जो कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर आपको डिस्प्लेस्ड मिलेगा, डिपॉजिटेड मिलेगा। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? कैसे होगा ये रिएक्शन देखो। The iron was left in a copper sulfate solution. It displaced copper from copper sulfate solution. The displaced copper formed reddish brown coating on the surface of iron nail. This reddish brown coating is of copper. ठीक है ना? चले अभी आगे। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज दिस फिगर 30 टेलिंग अस है? अ कॉपर वायर कॉइल हैज बीन प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अभी कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो सिल्वर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगी। Copper displaces silver from the silver nitrate solution. This silver is deposited on the copper wire coil. जो कॉपर का वायर कॉइल है उसके ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हो गया है। दिस इज सिल्वर डिपॉजिटेड there. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना? और मैंने आपको वो लिस्ट बनाने को बोला हुआ है ना कलर्स की, सब वो लिस्ट बना रहे हो? सबने लिखा उसमें कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, आयरन सल्फेट FeSO4 इज ग्रीन इन कलर। रजिस्टर के बैक साइड पे बनाने को बोला था मैंने वो लिस्ट। इज एवरीवन मेकिंग दैट? अवियश सेइंग नो। तो अवियश कैसा लिखना शुरू करोगे बेटा जी? केमिस्ट्री के रजिस्टर का लास्ट पेज पर सारे कंपाउंड्स जो जो पढ़ते जा रहे हो सबके कलर्स नोट करो। ओके? लिख लिया सबने?
तो चलो ये भी लिखो कि सिल्वर नाइट्रेट इज कलरलेस सोल्यूशन एंड कॉपर नाइट्रेट इज ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। जल्दी से, फटाफट से कलर्स को रजिस्टर के एंड में नोट करते जाओ, क्योंकि व्हेन दे विल गिव यू क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस लाइक एक एक्स है एक वाई है, रिएक्शन हुआ है, ब्लू कलर की चीज बन गई है फ्रॉम कलरलेस, तब आपको कलर्स ही हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट कि सॉल्ट सॉल्यूशन किसका था और कंपाउंड्स क्या यूज हुए हैं। ठीक है, नोटेड। तो रिएक्शन कैसे हुआ है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, सिल्वर की वैलेंसी +1। ठीक है, नाइट्रेट -1 याद है सबको, नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों -1 होती है, NO3 NO2 दोनों की वैलेंसी -1 होती है। तो नाइट्रेट की -1, Ag की +1 एक्सचेंज हुई, AgNO3 ही रह गया वो, AgNO3 रिएक्टेड विथ कॉपर। तो अब यहाँ से सिल्वर जो है वो एस्केप आउट कर जाएगा और कॉपर के साथ नाइट्रेट बनेगा, तो ये -1 कॉपर की +2, CuNO3 होल ट्वाइस। गॉट इट और नॉट बच्चे? रिएक्शन लिखो साथ में जल्दी जल्दी से, और 5-6 लाइंस छोड़ दिया करो बाद में, ताकि उस रिएक्शन को 2-3 बार दोबारा लिख कर देख सको। तो अब हम इस रिएक्शन में हम इसकी थ्योरी क्या पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी में ये लिखा जाएगा कि जो कॉपर कॉइल आपने हैंग की है सिल्वर नाइट्रेट के अंदर, वो जो है उसके ऊपर ही सिल्वरी वाइट कलर का, सिल्वरी ग्रे कलर का एक डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि सिल्वर का होगा। कॉपर नाइट्रेट जो आपने कॉपर कॉइल हंग की थी वहां पर, उसके ऊपर एक सिल्वरी ग्रे कलर का सिल्वर जो है वो आकर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो आपने सॉल्यूशन लिया था वो फ्रॉम कलरलेस ब्लू टर्न हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? क्लियर और नॉट एवरीवन? ठीक है, आ गई सबको ये बात समझ में? चलें अभी एक सैंपल प्रॉब्लम देखें। Right. In a solution of silver nitrate, copper plate was dipped. After some time, silver from the solution was deposited on the copper plate. Which metal is more reactive? सिल्वर डिस्प्लेस हो गया है ना सिल्वर नाइट्रेट से, और वो डिपॉजिट हो गया है ना। अगर वो डिस्प्लेस हुआ है कॉपर से, तो इसका मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। बोला था मैंने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, दे विल गिव यू वन रिएक्शन एंड देन दे विल आस्क यू व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव। तो इफ समथिंग इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो दैट इज लेस रिएक्टिव। गॉट इट एवरीवन और नॉट? क्लियर नो? चले अभी आगे नेक्स्ट करें। सैंपल प्रॉब्लम 2 वी आर डूइंग नाउ। A solution of CuSO4 was kept in iron pot. आयरन के एक पॉट के अंदर आपने CuSO4 स्टोर किया है, CuSO4 कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल। आफ्टर फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव नंबर ऑफ होल्स इन इट। उसके अंदर होल्स हो गए हैं, परफोरेशंस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मेटल रिएक्ट कर गया उसके साथ। Write the equation of the reaction that took place. Explain the reaction in terms of reactivity. So we will say that copper sulfate solution was kept in iron pot. No, तो CuSO4 आयरन पॉट के अंदर रखा गया। तो व्हाट विल हैपन हियर, आयरन सल्फेट बन जाएगा, यहाँ पर FeSO4 बनेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन। इसको बैलेंस करके लिखना है आप लोगों ने। आप इसमें साथ में क्या एक्सप्लेन करेंगे, आप साथ में एक्सप्लेन करेंगे दैट दिस shows that iron is more reactive than copper, thus it has displaced copper from its sulfate salt. Got it everyone or not? ठीक है ना? In the terms of reactivity, that is how you'll explain this. चलें अभी आगे। Sample problem 3 now we need to do. What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? तो reactivity series में zinc comes down or on the top. Avesh, keep your camera on बेटा। अवेश, कैमरा ऑन करके बैठो। राइट तो अभी व्हाट वी हैव डन, हमने जिंक ऐड कर दिया टू आयरन सल्फेट FeSO4, राइट।
तो जिंक अगर आपने FeSO4 में पुट किया है, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले तो आप बोलकर देखो क्या क्या होने वाला है। इज आयरन मोर रिएक्टिव और जिंक? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जीब्रा। जीब्रा आ गया, इंस्टेड ट्राई लर्निंग। इंस्टेड नीचे आया ना जेब्रा के बाद, इंस्टेड ट्राई लर्निंग। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, राइट और नॉट? तो इसका मतलब जिंक का सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा और आयरन बाहर आ जाएगा। गॉट इट और नॉट एवरीवन? है ना? जल्दी से रिएक्शन को लिख दो फटाफट से, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करो रिएक्शन को। जिंक सल्फेट के लिए प्लीज राइट द कलर दैट इज कलरलेस। तो ग्रीनिश सॉल्यूशन विल टर्न कलरलेस एंड देन आयरन, ग्रे colored iron will be displaced from it. जल्दी जल्दी से लिख दो रिएक्शन को। बैलेंसिंग के काम जितने भी पेंडिंग होंगे वो बाद में करना, ओके? एज ए होमवर्क कंप्लीट करो उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कौन सा डिस्प्लेसमेंट करेगा, विल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? आर्यदित्य, यू टेल मी। कैसे डिसाइड करें कि NaCl सोल्यूशन को कॉपर डिस्प्लेस करेगा इसमें या नहीं करेगा? आर्यदित्य बताओ। मैंने रिकॉर्डिंग से देखा। अभी समझा तो रही हूँ, अभी समझाया तो। ग्रीशा, यू टेल मी। Ma'am, in this reaction, the copper metal is less reactive than NaCl, तो नहीं होगा displacement reaction. ओके, नहीं होगा। अवेश, you tell me, MgCl2 solution and aluminium metal, would this displacement reaction happen or not? Ma'am, it will not happen. Why not? Why not? बोलो, रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको? रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है? फिर बेटा मैं एग्जाम दे आऊं सब लोगों के लिए? क्योंकि आप लोग चैप्टर्स तो खत्म करवा रहे हो, पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो। मैं पढ़कर एग्जाम दे आऊं आप सब लोगों के लिए? क्या लग रहा है मेरे पढ़ने से एग्जाम हो जाएंगे अच्छे? या आप लोग सब घूम लो, पार्टी कर लो, छुट्टी बना लो, और मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ? है ना? ऐसे ही करे ना तेजस, फिर अच्छे आ जाएंगे ना मार्क्स। है ना? छुट्टी कर लो, इनविटेशन देना पड़े आपको क्लास में, 10 मिनट्स आप क्लास में लेट आओ, 10 मिनट्स आप क्लास से पहले एग्जिट मार जाओ, और फिर भी मैं एग्जाम अच्छे हो जाएं। तो अलका मैम थोड़ी है मैजिशियन है, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, और बस तेजस को अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे नहीं आएंगे बेटा मार्क्स। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कोई भी मार्क्स नहीं दिलवा पाएगा ऐसे आपको। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जीब्रा। प्लीज स्टॉप calling me a careless zebra. P for potassium, S for sodium, C for calcium, me magnesium, A aluminium. अब बताओ अवेश, अब क्या समझ में आया? रिएक्शन होगा या नहीं होगा? मैम होगा। रिएक्शन होगा। अच्छा, बताओ आर्यदित्य, आप नो में हेड नॉट कर रहे हो, नहीं, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा मैम। क्यों नहीं होगा? मैंने अवेश से भी पहले रीजन ही पूछा था, उसने आंसर ही चेंज कर दिया अपना। आई वॉज लुकिंग फॉर एन आंसर कि आंसर क्यों क्यों होगा या क्यों नहीं होगा। रीजन बताओ मुझे। आर्यदित्य, क्यों नहीं होगा? इन दी टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल फैक्ट। अगम, रिएक्शन होगा या नहीं होगा MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम? Ma'am, it won't happen, ma'am, because aluminum is not more reactive than zinc. एल्यूमिनियम इज कम अगेन। अच्छा, इतनी जल्दी थी म्यूट करने की? आप बताओ।
Ma'am, because aluminum is not more reactive than magnesium, ma'am, so it तो will आई not. कैन सिंपली से इट इज लेस रिएक्टिव। Yes, ma'am. ये सिंपल सा ही तो फैक्ट था एक, अविश। आंसर थोड़ी चेंज करना था। एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो फिर वो उसको डिस्प्लेस कैसा कर सकता है? नहीं कर सकता। गॉट इट और नॉट? मैं रीजन पूछ रही थी, मैं ये थोड़ी कह रही थी तेरा आंसर गलत है। पर तुम लोग इतनी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो, इसका मतलब अगेन पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट वन, FeSO4 प्लस सिल्वर मेटल। अनवी आप बताओ मुझे, होगा ये रिएक्शन या नहीं होगा? मैम ये रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ओके, वेरी गुड। तो अभी मुझे अभिनव बताएगा। अभिनव, लास्ट रिएक्शन AgNO3 प्लस कॉपर मेटल, होगा या नहीं होगा? Uh, मैं रिएक्टिविटी सीरीज आगे कंप्लीट कर दूं? प्लीज स्टॉप no, कॉलिंग मी ma'am. अ केयरलेस जीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इसके Yes, अंदर ma'am, it will. The reaction will happen because copper is more reactive than silver. यस, Easy. एब्सोल्युटली, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड है ना, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव, इट्स ऑन लाइक अबव सिल्वर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो इट्स मोर रिएक्टिव, तो ये रिएक्शन होगा। गॉट इट और नॉट एवरीवन? क्लियर है? क्लियर है ये सबको? चलें अभी नेक्स्ट कर। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं आप सैम्पल प्रॉब्लम 5 वी आर डूइंग नाउ। Sample problem 5. Zinc oxide, magnesium oxide, copper oxide were heated turn by turn with zinc, magnesium, copper metals. तो जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ, जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ, जिंक ऑक्साइड को कॉपर के साथ, तो इस तरीके से इन्हें हीट किया गया है। तो इन ऑल देखा जाए तो यहाँ पर 3 3 जा 9 9 रिएक्शंस हो रहे हैं। देन मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड को कॉपर। तो इस तरीके से ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। दे आर आस्किंग इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन मैं आप लोगों के लिए यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज बना देती हूँ। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। हाउ कॉपर हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। और मैं इसको पूरा कर देती हूँ। पोटेशियम, जल्दी जल्दी से नोटबुक में आंसर लिखना शुरू करो। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। ये कंपैरिजन बेसिस है बेटा। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। किसी को हेल्प चाहिए इसमें? नॉड योर हेड एंड टेल मी। लग रहा है किसी को हेल्प लगेगी इसमें। आर्यदित्य, टेल मी, बोल के बताओ। नहीं हो जाएगा? चलो पॉज कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, देखो 2 मिनट करके देखो सब लोग। चलो एक एक करके आंसर बताना शुरू करो मुझे। अगम बताओ, जिंक ऑक्साइड का इन तीनों में से जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर में से किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? Ma'am, only with magnesium. बाकी Ma'am, दोनों because के साथ नहीं हो रहा है। ओके, अनवी, यू टेल मी बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का तीनों में से किसके साथ रिएक्शन होगा? मैम मैग्नीशियम ऑक्साइड का किसी के साथ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ओके। इप्सा, यू टेल मी फॉर द थर्ड वन, कॉपर ऑक्साइड का तीनों में से किसके साथ रिएक्शन होगा? इप्सा, ये अपना स्पीकर प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाना। कम क्लोजर टू द डिवाइस एंड देन आंसर। with zinc and magnesium. विद जिंक एंड मैग्नीशियम होगा। सब लोग आंसर्स चेक करो अपने जल्दी से। टैली कर रहे हैं?
गुड, ओके, नाइस। इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे पता चल गए एग्जाम में, ठीक है ना? ओके, अभी सैंपल प्रॉब्लम 6 सॉल्व करना है हमको। Samples of four metal A, B, C, and D were taken and added to the solution given in the following table one by one. The result obtained are as follows. As in, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोई एक मेटल ए है जिसको आयरन सल्फेट में आपने पुट किया है, तो देयर इज नो रिएक्शन हैपनिंग। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, आयरन मेटल ए इज लेस रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट, राइट और नॉट? तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, ए इज लेस रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट। इस तरीके से मैंने एक हिंट की तरह लिख लिया है अभी के लिए। ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है विद कॉपर सल्फेट, इसका मतलब ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, राइट और नॉट? ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट। इसका मतलब क्या है, ए कौन से मेटल हो सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? ए कौन से मेटल्स हो सकते हैं, कौन बताएगा? देखते हैं, चलो ये इसका आंसर कौन देता है मुझे। मुझे रजत बताएगा। रजत बताओ बेटा। मैम ये जो होगा वो आयरन से नीचे आएगा रिएक्टिव सीरीज में और कॉपर से ऊपर आएगा। तो ऐसे कौन से होते हैं बताओ? आयरन से नीचे टिन आता है, लीड आता है, हाइड्रोजन आता है, टिन आता है, फिर लेड आता है, और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन का मतलब क्या? हाइड्रोजन एसिड कह सकते हो आप ना, कि एसिड्स में हाँ से एच यस। वो डिस्प्लेस होगा ना। और बोलो, चलो यस और मैम। बताओ। और कॉपर फिर। कॉपर से भी? नहीं, फिर कॉपर आ जाएगा हाइड्रोजन के बाद, लीड तो फिर कॉपर, तो कॉपर के ऊपर होगा। हम्म तो इसका मतलब कौन कौन से ऑप्शंस में से ऑप्शंस हो सकते हैं? टिन हो मैम सकता है। टिन, लीड। अगर मेटल्स की बात हो रही है हाँ तो टिन लेड। और लेड हो सकते हैं, है ना? टिन और लेड, यस मैम। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ओके, चलें अभी आगे। नेक्स्ट, बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है आयरन सल्फेट से, इसका क्या मतलब है? व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम है कि बी जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट, राइट और नॉट? बी ज्यादा रिएक्टिव है फ्रॉम आयरन सल्फेट। बाकी नो रिएक्शन है जिंक सल्फेट के साथ, इसका मतलब बी इज लेस रिएक्टिव देन जिंक सल्फेट। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? समझ पाओगे ऐसे एग्जाम में? चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। दे आर सेइंग विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो ये पता आप कैसे पता कर पाओगे? आपको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज सामने चाहिए होगी, उसके बिना नहीं सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस zebra, instead try learning how copper saves gold, और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब देखो बेटा, अब इसको रिलेट करना कितना इजी हो जाएगा। व्हेन आई से ए इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन सल्फेट भी क्यों ना, मैं आयरन की बात करती हूँ, उसे सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा ना वो। तो अब हम कह रहे हैं कि ए इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ए इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो अगर ए आयरन से कम रिएक्टिव है तो इसका मतलब वो इससे नीचे है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आयरन हो सकती है, राइट और नॉट? पर वो कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब यहाँ पर वापस। तो इसका मतलब दी ऑप्शन इज आउट ऑफ फ्रॉम टेन, लेड एंड हाइड्रोजन में से कोई ऑप्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज द रेंज फॉर ए। ये ए का रेंज है। लाइकवाइज नाउ लेट अस गेट टू फाइंड बी। आयरन के साथ वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो ऊपर की तरफ एरो पुट करते हैं ऐसे, टू द टॉप। एंड जिंक के साथ वो नो रिएक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब बी इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो जिंक से नीचे की लाइन, इसका मतलब इनके बीच का रेंज है, यहाँ पर है। जो आप रिएक्टिविटी सीरीज में, आपने कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ी है ना अभी तक, है कि नहीं बच्चे? तो इसके बीच का कोई एक मेटल है।
हम सिर्फ इसको बी का रेंज ले लेते हैं कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर बीच में है बी। ऐसे ही सी देखते हैं, सी का आयरन के साथ नो रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब सी आयरन से कम रिएक्टिव है। मुझे सिर्फ एक रफ एस्टिमेट चाहिए कि मैं ये देख सकूं रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कहाँ लाई कर रहा है, तभी समझ पाएंगे उस चीज को। तो अगर सी आयरन से कम रिएक्टिव है तो यहाँ नीचे आयरन से लेस रिएक्टिव, इसमें से कुछ हो सकता है वो। एंड नो रिएक्शन विद कॉपर, कॉपर से भी कम रिएक्टिव है, और नीचे इससे भी नीचे जिंक से भी कम रिएक्टिव है, तभी तो नो रिएक्शन हो रहा है। तो जिंक, जिंक तो भी ऑलरेडी नो, वो तो बहुत ही ऊपर है ना। तो ऑफ कोर्स अगर वो आयरन से नीचे है तो जिंक से नीचे तो होगा ही। देन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपनिंग विद सिल्वर नाइट्रेट। तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहा है वो, तो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो शुड बी हेयर समवेयर, राइट और नॉट, कॉपर और सिल्वर के बीच में। आ रही है बात समझ में बच्चे की, नहीं आ रही? सी इज लाइंग हेयर समवेयर। देन इज डी। तो आप डी की बात करें, नाउ फॉर डी इट इज नो रिएक्शन विद आयरन, तो इसका मतलब आयरन से लेस रिएक्टिव है, ये रहा आयरन से लेस रिएक्टिव है। कॉपर से भी कम रिएक्टिव है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। जिंक से भी कम रिएक्टिव है, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ से भी नीचे है। एंड सिल्वर से भी नो रिएक्शन, तो मतलब शायद हो सकता है प्लैटिनम ही हो, है ना, कि सिल्वर से भी, या तो गोल्ड की बात हो रही होगी या प्लैटिनम की बात हो रही होगी, कुछ ऐसे। तो अब इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है इसमें से? इसमें से हमें टॉप पर मिला बी, देन मिला हमें ए, देन मिला हमें सी, देन मिला हमें डी। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना? वॉट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन? अब यही बातें हमने सारी पहले डिस्कस कर ली हैं कि जब आपने मेटल बी को कॉपर सल्फेट के साथ आप ऐड करोगे तो वहां क्या होगा। तो आपने मेटल बी के बारे में यहाँ क्या समझा है कि वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप कहोगे रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, राइट और नॉट बच्चे? समझ पा रहे हो सब लोग ये बात? इसी तरीके से अरेंज मेटल ए बी सी डी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, दिस वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। ये आप तभी कर पाओगे जब रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। तो दिस क्वेश्चन वाज अ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे ही इसे समझकर ही समझ पाओगे। मतलब टाइम लगेगा इसको करने में एग्जाम में, लेकिन ऐसे ही प्रॉपरली पूरा रिएक्टिविटी सीरीज लिखकर ही कौन कहाँ लोकेट कर पा रहे हो तभी समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। गॉट इट एवरीवन और नॉट? ठीक है, समझ में आ गया? चलें अभी आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ और क्या है। देखो यहाँ पर दिस इज बी ए सी डी, बी ए सी डी, यही ऑर्डर हमने किया था, बी ए सी डी। गॉट इट नो एवरीवन? चलें अभी नेक्स्ट टॉपिक करें, सैम्पल प्रॉब्लम्स खत्म हो गई बस। नाउ वी नीड टू डू रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल, वी नो क्लोराइड इज व्हाट, इज नेगेटिव आयन, नो? क्लोराइड क्या होता है? क्लोरीन कम्स एट नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, -1 वैलेंसी आएगा तो क्लोरीन का आयन, एनायन बनता है Cl-1। गॉट इट और नॉट? है ना? तो क्लोराइड आयन Cl-1। अब मेटल को रिएक्ट करना है अगर, तो आप कोई भी मेटल लेते हैं जब, वो पॉजिटिव आयन ही बनाता है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में, राइट और नॉट? मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही होते हैं नेचर में। उनके साथ जब आप क्लोराइड आयन यूज करेंगे, क्लोरीन यूज करेंगे, तो ऑफ कोर्स दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दिस इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन आस्किंग फॉर इट। तो क्या हो जाएगा? देयर बी आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है? वेयर वन डोनेट्स अनदर एक्सेप्ट्स। तो कैसी बॉन्डिंग बनेगी दोनों के बीच में? आयनिक बॉन्डिंग बनेगी। वन इज डोनेटिंग, अनदर इज एक्सेप्टिंग, विद दिस काइंड ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, एंड दे आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन कोवलेंट बॉन्ड्स, जहां शेयरिंग होती है उससे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, आ गई बात समझ में? और जितने भी आयनिक बॉन्ड्स की चीजें होंगी ना, अगर वो कभी भी आपसे पूछते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि जब भी आप इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे दे विल ब्रेक इनटू आयंस अगेन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में दे विल ब्रेक डाउन, तो ऑफ कोर्स दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट एवरीवन और नॉट? तो आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे, आयनिक बॉन्डिंग होगी, एक डोनेट करेगा मेटल एंड क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, और क्लोराइड कंपाउंड्स बनेंगे, तो मेटल का क्लोराइड बनेगा, व्हाट यू विल कॉल इट, मेटल क्लोराइड्स, या फिर आप उसे कह सकते हैं क्लोराइड सॉल्ट ऑफ मेटल।
आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? गॉट इट एवरीवन? चलें अब इसके रिएक्शन को देखें। देखो यहाँ पर एक सोडियम का एग्जाम्पल दिया गया है हमें। Na+1 होती है वैलेंसी उसकी, Cl की -1, एक्सचेंज करो NaCl बन जाएगा। व्हाट इज दिस? एन आयनिक क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक क्लोराइड, इट इज आयनिक इन नेचर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ किसी को? चलें अभी आगे नेक्स्ट करें। अच्छा, कुछ टीचर्स कहती हैं हाँ पहले कि आप इनका हाफ रिएक्शंस भी बनाकर बताओ, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे ना यही क्वेश्चन NaCl का बनाना ही आपको हाई वेटेज में आ गया, तो आप क्या करेंगे? आप पहले Na कैसे बना, फिर Cl कैसे बना, ये एक्सप्लेन करके आगे NaCl का रिएक्शन बता देंगे, वही पार्ट हाई वेटेज हो जाएगा। जैसे कि Na से Na+ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, राइट और नॉट? वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर Na यहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, -1 इलेक्ट्रॉन, तो वो Na+ बन जाएगा? ये ठीक है क्या? नो, दिस इज इनकरेक्ट वे ऑफ राइटिंग द हाफ रिएक्शन। इस तरीके से हाफ रिएक्शन में माइनस कभी नहीं लिखते। हाफ रिएक्शंस लिखने के लिए आप हमेशा प्लस ही बताएंगे, पर इस साइड बता दो +1 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट और नॉट? याद रखेंगे हाफ रिएक्शन में माइनस कभी नहीं लिखते हैं। Na बना और एक इलेक्ट्रॉन अकेला बाहर हो गया। दिस इज हाउ यू राइट द हाफ रिएक्शन। ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन के लिए क्या करेंगे? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो +1 इलेक्ट्रॉन प्लस करना है ना, यहाँ तो प्लस प्लस ही लिखना है, तो दिस विल बी Cl-1। गॉट इट एवरीवन? और है समझ में आया सबको? तो जब भी आप पॉजिटिव आयन का हाफ रिएक्शन करेंगे आपको प्रोडक्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। जब भी आप अनायंस के लिए हाफ रिएक्शन लिखेंगे तब आप हमेशा रिएक्टेंट साइड पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। आ रही है बात समझ में हाफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? और बस अब इसके बाद तो आपको क्या ये Na+ उठाना है, ये Cl- उठाना है। Na+1 Cl-1 गिव्स NaCl। और आप इसे लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं Na+Cl2, क्योंकि क्लोरीन गैस की फॉर्म में आएगा ना, विल गिव यू NaCl। और यहाँ पर अब आप इसकी बैलेंसिंग कर दो, ये 2 Na लोगे और यहाँ से Cl2 भी 2 है तो 2 NaCl बन जाएगा। दैट्स हाउ यू कंप्लीट द इंफॉर्मेशन एंड गेट फुल मार्क्स। आ रही है बेटा सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? अगर यही क्वेश्चन हाई वेटेज में आता तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता। यही शॉर्ट वेटेज में आएगा तो यू कैन स्किप ऑल दी स्टेप्स एंड डायरेक्टली राइट दिस। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलें अभी आगे नेक्स्ट देखें। ऐसे ही कैल्शियम का क्लोराइड बना रहे हैं, Ca2+ Cl-1, एक्सचेंज करेंगे CaCl2। राइट बच्चे? ये आपको रिएक्शन समझने के लिए है कि सॉल्ट क्या बन रहा है, बट आप एग्जाम में ये रिएक्शन लिखकर जरूर आएंगे, क्योंकि क्लोरीन आप Cl- की फॉर्म में तो नेचर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते ना यूज करने के लिए। आप नेचर से तो क्लोरीन गैस लेंगे ना, तो आप उसे क्लोरीन गैस की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैल्शियम प्लस क्लोरीन गिव्स CaCl2। ये CaCl2 है, CaCl है, Ca2Cl है, ये समझने के लिए ये समझना होता है जो आपने 9th क्लास में सीखा था। गॉट इट एवरीवन और नॉट? आ गई ये बात सबको समझ में? चले अभी आगे, क्लोराइड सॉल्ट्स कैसे बनते हैं देख लिया हमने। देखें यहाँ पर वो हमें रिएक्शन दिखा रहे हैं क्या हो रहा है। दिस इज सोडियम, केरोसिन में डिप होता है, वो सोडियम है। देन आपने उसके अंदर से थोड़ा सा सोडियम निकाल लिया है। देन क्लोरीन गैस इज दिस गैस दैट यू हैव, येलो कलर की गैस होती है। देन सोडियम मेटल रिएक्टिंग विद क्लोरीन आपने उसके अंदर डाल दिया, और वो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा वहां पे, राइट? आई बच्चे बात समझ में? सोडियम क्लोराइड। लेकिन कैसे मिलेगा ये सोडियम क्लोराइड? ऐसा मिल जाएगा क्या व्हाइट पाउडर की तरह? ऐसा व्हाइट पाउडर की तरह मिलेगा क्या? व्हाइट पाउडर अलग हो जाएगा उसमें से? टेल मी, बताओ क्या होना चाहिए? सॉलिड आएगा, एक्वस आएगा, क्या आएगा, कौन बताएगा? देखो बेटा, ये अगर आप इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं करते हो ना, तो फिर आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये ना इंफॉर्मेशन माइंड में भी क्लियर करो कि जब आपने एक सॉलिड को एक गैस के साथ रिएक्ट किया, वहां पर
सॉलिड ही मिलेगा आपको। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? चलो बच्चे, अब ये रिएक्शंस हैं, मैं यहां से ये रिएक्शंस हाइड कर रही हूँ, और कोशिश करो चलो कंप्लीट करने की, फटाफट से एवरीवन, जल्दी से। पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ। डन। चलो अवेश बताएगा। अवेश, पहला कंपाउंड क्या बना बच्चे? मैम MgCl2 सॉलिड। ओके। रजत, सेकंड वन? मैम सेकंड वन होगा 2Al+3Cl2 gives 2AlCl। 2AlCl। इसका मतलब गड़बड़ हो गई। अगम, थर्ड वन? रजत मैम अभी समझाती हूँ बेटा कैसे गलती हुआ है। अगम, थर्ड वन बेटा। जिंक की वैलेंसी। Zn+Cl2 gives ZnCl2। गुड, राइट। मैम आई हैव अ ग्रीशा, डाउट। ग्रीशा, फोर्थ, Mom, दिस इज FeCl3. आयरन वाला, आयरन प्लस क्लोरीन वाला। Yes, mom, FeCl3. FeCl3। 3. गुड, ओके। अनघा बेटा, लास्ट वन, कॉपर प्लस क्लोरीन। आवाज नहीं आ रही Mom, अनघा। हम्म। Cu+Cl2 it gives CuCl2. गुड, राइट। अभी रजत समझो बेटा ध्यान से, एल्यूमिनियम नंबर 13 पर आता है, 283 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसकी वैलेंसी +3 हुई, राइट। क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, 287 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, -1 उसकी वैलेंसी हुई। एक्सचेंज करो इसे, AlCl3। गॉट इट और नॉट? आ गई ना ये बात समझ में? क्लियर है सबको? चलें अभी आगे। अब ये ना, ये जो चीजें हैं वो याद करनी पड़ेंगी। बोलो अगम बच्चे। मैम फर्स्ट वाले में आई डाउट। फर्स्ट वाले में Mg 12 नंबर पर आता है, 282, तो +2 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्लोरीन Cl -1 17 नंबर पर आता है ना, 287, तो MgCl2 ही तो बना बच्चे। ओके कोई ना। गॉट इट एवरीवन? याद करने वाली चीज ये है कि जब भी आप कॉपर को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, कॉपर 2 क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड बनाएंगे। आयरन की 3 वैलेंसी लेंगे, क्लोरीन के साथ फेरिक क्लोराइड बनाएंगे। जिंक की सेकेंड वैलेंसी यूज करेंगे। ठीक है, आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? वैलेंसीज को ठीक से याद करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं आप आयरन का 2 यूज करते हैं, कहीं आयरन का 3 यूज करते हैं। क्लोरीन के साथ यू विल यूज आयरन 3 क्लोराइड, एंड कॉपर का कॉपर 2। ठीक है, चलें अभी आगे। याद है ना ये सबको, कॉपर कौन कौन सी वैलेंसी शो करता है? कॉपर शो करता है 1 एंड 2, आयरन शो करता है, आयरन शो करता है 2 एंड 3। ठीक है, जिंक के लिए आप 2 ही वैलेंसी यूज करो। ठीक है, याद रहेगा ये। और हमेशा जो ज्यादा वाली वैलेंसी है उसे यूज करते हैं तो इक लिखते हैं, फेरिक, क्यूप्रिक। ठीक है, इनके लिए इक यूज होता है, और इनके लिए अस, क्यूप्रस, फेरस। चलें अभी आगे, नेक्स्ट करें। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। ये बहुत सिंपल है बच्चे। हाइड्रोजन वैसे तो +1 वैलेंसी शो करता है ना, लेकिन जब उसके सामने स्ट्रॉन्गर मेटल्स खड़े होंगे रिएक्टिविटी सीरीज के, जो जो हाइड्रोजन से ऊपर थे, कौन कौन से? प्लीज, स्टॉप, कॉलिंग, मी, अ, केयरलेस, जीब्रा, इंस्टेड, ट्राई, लर्निंग, हाउ से ऊपर ऊपर वाले सारे, मतलब कितने हुए? 10। आपकी रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने याद की है उसमें टॉप 10 मेटल्स, ये जो टॉप 10 मेटल्स होंगे, ये जब हाइड्रोजन के साथ होंगे, दे विल फोर्स हाइड्रोजन टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ये बात पहले भी आपको बताई है, बिकॉज ऑफ इज स्मॉलेस्ट साइज, हाइड्रोजन अपने साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। उसके आउटर मोस्ट शेल ही के शेल है, वहां पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो कन्वेंशनली उसको क्या करना चाहिए? उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसे फुल्ली फिल करने कर लेना चाहिए। तो H के ऊपर -1 वैलेंसी आनी चाहिए, एंड दिस शुड मेक हाइड्राइड सॉल्ट्स। लेकिन
क्या करता है, हाइड्रोजन इस एक इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज, इसीलिए मोस्टली वो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे भी डोनेट करके अपनी लास्ट शेल एम्प्टी कर देता है और क्या बना देता है, H+1 बनाता है, राइट। लेकिन जब हाइड्रोजन के साथ बहुत रिएक्टिव मेटल्स खड़े हैं सामने, दे विल फोर्स हाइड्रोजन टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और तब बन जाएंगे हाइड्राइड सॉल्ट्स ऑफ मेटल। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, इसीलिए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने ही पड़े और वो क्या बन गए, हाइड्राइड्स बन गए। आ रही है बात समझ में? जैसे क्लोराइड बने थे, जैसे ऑक्साइड बने थे, वैसे ही ये एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्राइड बनाएगा, आईडीई ही आएगा इसमें भी। जैसे ऑक्साइड में आईडीई आया है लास्ट में, क्लोराइड में आईडीई आया है लास्ट में, ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में हाइड्राइड आईडीई ही आएगा लास्ट में। तो जस्ट लाइक एनी अदर नॉन मेटल्स रिएक्शन विद मेटल, ये भी हाइड्रोजन भी वैसा ही रिएक्ट करके आईडीई हाइड्राइड सॉल्ट बनाएगा। आ गई बच्चे बात समझ में सबको कि नहीं आई? ठीक है, देखो यहाँ पर ये बात लिखा है, इन मेटल हाइड्राइड्स द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन, अन आयन कॉल्ड हाइड्राइड आयन H-। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कोई प्रॉब्लम? अब ये बाकी रिएक्शंस भी दिए हुए हैं, दो रिएक्शंस कोई भी कर लो। अब हमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ने हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और ये सिंपल टॉपिक होता है, कोशिश करेंगे इसे सिंगल क्लास में फिनिश कर दें, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी तक। आप लोग अभी से ही यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ दो, क्योंकि ये थियोरी है, मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये सेट एज योर होमवर्क मिल जाएगा। तो इसीलिए प्लीज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यू हैव टू रीड। हु इज द वॉलंटियर फॉर दिस बैच? इप्सा? ओके, इप्सा बेटा, राइट दिस इन द ग्रुप दैट एज योर होमवर्क यू हैव टू रीड यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और क्लास वर्क में वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, रिएक्शंस को लिख लो, मैं टाइम ज्यादा नहीं दूंगी बेटा लर्निंग वर्क के लिए, तो साथ की साथ लर्न करते चलो। ओके, चलो बाय बाय बच्चा लोग, नेक्स्ट मैच आ जाओ, कैमराज ऑन।